Hello everyone, welcome back. In the last videos, we have seen some of the numericals based on the divergence formula. Let us see one more numerical based on the divergence formula, and then we will proceed for the next type of numerical on the divergence. So let us go and read this numerical first. So this type of numerical we have already solved in the previous video. I have taken this one more video to get the practice of such type of numericals. Now see what is given here. Calculate the divergence of each of the fields given at the following points indicated. ठीक है, वेक्टर D आपको दिया हुआ है, राइट? तीन अलग अलग दिया हुआ है आपको वेक्टर D. All these three vector D, one of the vector D, if you see here, 4x cube y cube z square into unit vector ax plus 3x to the power 4 y square z square ay plus 2x to the power 4 y cube z into unit vector az, right? तो ये vector D दिया हुआ है. If you see, this vector D is given to you in Cartesian coordinate system, right? तो इस तरह का न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है. और डाइवर्जेंस फाइंड करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड करना है. कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट पी ए 1 2 3. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, you have to apply the formula of divergence in Cartesian coordinate system. क्यों Cartesian coordinate system में? क्योंकि हमको वेक्टर D दिया हुआ है Cartesian coordinate system में, इसलिए हमको डाइवर्जेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा in Cartesian coordinate system. So here in this first case we will consider vector D is equals to vector D हमने जो दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है. Now we know that the formula of divergence in Cartesian coordinate system, it is del by del x of dx plus del by del y of dy plus del by del z of dz. ऑलरेडी ये फॉर्मूले मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, राइट? अभी यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको dx का इक्वेशन, dy का एक्सप्रेशन और dz का एक्सप्रेशन आपको पुट करना है. अब ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको वेक्टर D के एक्सप्रेशन से. तो वेक्टर D दिया हुआ है, देखिए यूनिट वेक्टर ax के साथ जो टर्म रहता है वो रहता है हमारे पास dx. ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, दिस इज माय dx. यूनिट वेक्टर ay के साथ जो रहेगा ये रहेगा मेरे पास dy, राइट? और यूनिट वेक्टर az के साथ जो रहेगा वो रहेगा मेरे पास टर्म दैट इज dz, राइट? सो दिस इज माय dx, दिस इज माय dy एंड दिस इज माय dz. तो ये dx dy dz मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, राइट? तो dx देखिए डेल बाय डेल x ऑफ dx, dx कितना दिया है? 4x क्यूब y क्यूब z स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है. प्लस डेल बाय डेल y ऑफ dy, तो dy का एक्सप्रेशन 3x टू द पावर 4 y स्क्वायर z स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया. प्लस डेल बाय डेल z ऑफ dz है, dz का एक्सप्रेशन 2x टू द पावर 4 y क्यूब z, ये मैंने यहाँ पे रख दिया. वंस यू विल पुट दिस वैल्यू, जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस. जनरली सभी टाइप के न्यूमेरिकल में अगर आप देख रहे हो तो सिंपल डिफरेंशिएशंस आपको आएंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन वाले न्यूमेरिकल नहीं आएंगे. Now here in this case you have to differentiate with respect to x, right? So 4y cube z square that will be constant, and differentiation of x cube, this will give you the 3x square. 3x square आएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, right? x square और y cube z square will be the constant because we are differentiating with respect to x, right? Similarly the second term is to be differentiated with respect to y से differentiate करना है, तो इसलिए 3x to the power 4 z square constant बनेगा और y square का differentiation with respect to y is 2y, तो इसका differentiation आएगा 2y, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 6, right? x to the power 4 then y then z square, तो simple differentiation है यहाँ पे. प्लस we have to differentiate the third term with respect to z. तो इसको अगर मैं differentiate करता हूं with respect to z, तो differentiation of z with respect to z is 1, और ये हमारे पास constant रहेगा 2x to the power 4 y cube, तो इसलिए 2x to the power 4 y cube यहाँ पे टर्म लिख दिया मैंने. अभी ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर D, राइट? लेकिन आपको पॉइंट P पे PA पे कैलकुलेट करना है. पॉइंट PA क्या दिया हुआ है? 1 2 3. तो यहाँ पे क्या कर लेना है आप लोगों को, इस पॉइंट पे अगर आपको डाइवर्जेंस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू 1 पुट करिए, y की वैल्यू 2 पुट करिए और z की वैल्यू 3 पुट करना है. तो ये जो डाइवर्जेंस निकाला हुआ है इस फॉर्मूले में मुझे x1 y इज इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 अगर आप पुट करते हो तो यू विल गेट दिस वैल्यू. सो गो ऑन पुटिंग. 12 ऑलरेडी है, x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर इज 1 इनटू y क्यूब है तो y कितना है हमारे पास? 2. 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया.
then z square, तो z is 3, तो z square is 9, right, plus, right, then 6 already है यहाँ पे, x to the power 4 यानी 1 to the power 4 is 1, then y is 2, तो y 2 रख दिया मैं यहाँ पे, z square है तो z is 3, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, right, और थर्ड टर्म के लिए अगर आप देखोगे तो थर्ड टर्म में आपका हमारे पास 2x to the power 4, तो 2 जैसे कि वैसे लिख दिया, x to the power 4 यानी 1 to the power 4 is 1, right, and y क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, तो ये जब वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे यू विल फाइंड दैट दिस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी इट इज 988 कूलम्स पर मीटर क्यूब. द यूनिट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी इज कूलम्स पर मीटर क्यूब एंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी इज ऑल्सो रो वी. ध्यान में रखना है, तो कभी कभी आपको डाइवर्जेंस फाइंड करने के बदले आपको रो वी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, तो उस केस में रोवी और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी आपका सेम थिंग है, और रोवी का यूनिट रहता है हमारे पास कूलम्स पर मीटर क्यूब, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी का भी यूनिट रहेगा कूलम्स पर मीटर क्यूब, राइट. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है. सेकंड पार्ट में आपको वेक्टर डी दिया हुआ है. इफ यू कैन सी हियर वेक्टर डी इज गिवन, दैट इज z sin phi into unit vector a rho, z cos phi into unit vector a phi plus rho sin phi into unit vector az. तो इफ यू सी द यूनिट वेक्टर्स ऑफ दिस वेक्टर डी इट इज a rho a phi az. इसका मतलब जो वेक्टर डी दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट. सो एज द वेक्टर डी इज गिवन टू यू इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जेंस इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ऑलरेडी ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, राइट. टू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी इज 1 अपॉन रो डेल बाय डेल रो ऑफ रो डी रो plus 1 upon rho del by del phi of d phi plus del by del z of dz. So here you have to put the expression of d rho, here you have to put the expression of d phi and here you have to put the expression for dz. तो d rho कितना हो जाएगा, a rho के साथ जो टर्म रहेगा वो रहेगा d rho, यानी ये जो टर्म रहेगा that is nothing but my d rho, right. Then a phi के साथ जो रहेगा वो रहेगा मेरे पास d phi, this term is d phi, right. और az के साथ जो टर्म रहेगा वो रहेगा हमारे पास dz, right. तो ये हमारे पास dz है, तो सिंपली d rho d phi और dz का इक्वेशन यहाँ पे रख देना है. तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1 upon rho डेल बाय डेल रो ऑफ रो ऑलरेडी है, राइट, और डी रो है हमारे पास z sin phi, तो यहाँ पे z sin phi मैंने पुट कर दिया प्लस 1 अपॉन रो जैसे कि वैसे पुट कर देता हूं, देन डेल बाय डेल फाई ऑफ डी फाई कितना है हमारे पास z cos phi, तो यहाँ पे मैंने z cos phi यहाँ पे रख दिया डी फाई की जगह प्लस डेल बाय डेल z ऑफ dz, और dz कितना है रो sin phi, यहां से आप देख सकते हो, राइट. वंस यू विल पुट द एक्सप्रेशन ऑफ d रो d phi एंड dz, सिंपली यू हैव टू डिफरेंशिएट इट, राइट. तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर d इक्वल्स टू 1 अपॉन रो ऑलरेडी है. This term is to be differentiated with respect to rho. Rho से differentiate करना है, तो z sin phi will be constant and the differentiation of rho with respect to rho is 1. तो इसलिए यहाँ पे term कितना आएगा z sin phi plus 1 upon rho already है. This term is to be differentiated with respect to phi. तो z will become constant and differentiation of cos phi will be minus sin phi. तो ये हो जाएगा minus z sin phi. Right, simply you have to differentiate it. Plus the third term is to be differentiated with respect to z. There is no term of z, so rho sin phi is constant and differentiation of constant will be 0. तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा. So that's why अगर आप यहाँ पे देखोगे ये टर्म हो जाएगा हमारे पास, ये पहला टर्म हो जाएगा that is z sin phi divided by rho, और ये टर्म हो जाएगा हमारे पास minus z sin phi divided by rho. तो दोनों टर्म हमारे पास सेम है विद चेंज इन साइन, सो देयरफॉर ये टर्म हो जाएगा हमारे पास 0. सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी इज 0. उस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला था, अभी पॉइंट कोई भी दो, लेकिन डाइवर्जेंस की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आई है तो किसी भी पॉइंट पे डाइवर्जेंस क्या रहेगा हमारे पास 0 ही रहेगा. न्यूमेरिकल में अगर आप पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, दैट इज 2 पाई बाय 2 और 3 पे, लेकिन डाइवर्जेंस ही इसका 0 अगर आया हुआ है तो किसी भी पॉइंट पे अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि देयर इज नो टर्म ऑफ रो फाई एंड जेड. अगर डाइवर्जेंस निकालने के बाद अगर आपको कोई रो फाई और जेड वाला टर्म अगर मिलता है यहाँ पे, ठीक है, तो डाइवर्जेंस निकालने के बाद रो फाई और जेड का कोई टर्म अगर आप निकालते हो, इन दैट केस यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ रो फाई एंड जेड एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस एट दैट पॉइंट, राइट. Now this is the second part. Now let us go for the third part. Now the third part, if you see the vector d, that is vector d is equal to sin theta divided by r into unit vector ar plus cos theta natural logarithm of r divided by r into unit vector a theta.
तो अगर यूनिट वेक्टर्स अगर आप देखते हो तो ए आर ए थीटा दिया हुआ है, हो सकता है ए फाई वाला भी टर्म आपका है, तो इसका मतलब ये आपका कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, दिस इज इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जेंस इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम द फॉर्मूला ऑफ द डाइवर्जेंस इज दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डी आर प्लस 1 upon r sin theta del by del theta of sin theta d theta plus 1 upon r sin theta del by del phi of d phi। तो यहाँ पे भी देखिए dr आया हुआ है, राइट, d थीटा आया हुआ है और d phi आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली dr d थीटा और d phi का एक्सप्रेशन आपको पुट कर देना है। आप अगर आप देखोगे तो ar के साथ जो टर्म रहेगा दैट इज नथिंग बट योर dr, ये हो जाएगा मेरे पास dr। ए थीटा के साथ रहेगा वो हो जाएगा मेरे पास डी थीटा, ये वाला टर्म हो जाएगा मेरे पास डी थीटा। देयर इज नो टर्म ऑफ फाई, फाई वाला टर्म नहीं है, यूनिट वेक्टर ए फाई वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब डी फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो अगर डी फाई की वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो वैसे भी ये जो थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा, राइट। सिर्फ आपको दो टर्म के लिए ही सॉल्व करना है। देखिए डी आर और डी थीटा की वैल्यू अभी आपको पुट कर देना है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर ऑलरेडी है और डी आर का एक्सप्रेशन क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा पहले ही है, डी थीटा का एक्सप्रेशन पुट कर देना है कॉस थीटा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर, जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, राइट। वंस यू विल पुट दिस, सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एक बार। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा आर साइन थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा, वैसे ही है डेल बाय डेल थीटा ऑफ क्या मिलेगा अभी आपको, साइन थीटा कॉस थीटा इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर, राइट। अभी इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर इनटू we have to differentiate this term with respect to r, तो sin theta will become constant and the differentiation of r with respect to r is 1, तो ये रहेगा हमारे पास sin theta, right, plus 1 upon r sin theta वैसे ही रख दिया। then we have to differentiate with respect to theta, तो natural logarithm of r divided by r वैसे ही रखना है and sin theta cos theta का जो differentiation है, ठीक है, वो कितना मिलेगा मुझे, देखिए sin theta cos theta का कैसे निकालोगे, आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज अगर मैं लिख देता हूं इसको 2 से, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, राइट। 2 विल गेट कैंसल्ड, आपका टर्म ये वाला चेंज नहीं होगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ 2 थीटा, राइट। बाय ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले यू कैन राइट डाउन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है। तो जब साइन 2 थीटा को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 विल गेट कैंसल्ड हियर, तो क्या मिलेगा मुझे cos 2 थीटा, राइट। तो इसलिए sin थीटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली ध्यान में रख सकते हो, दैट इज cos ऑफ 2 थीटा, या इस तरह से आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। Once you will differentiate this, what is the next step? You have to find out the value of divergence at the given point. तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट स्टेप से मैंने यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, लेकिन अभी डाइवर्जेंस आपको इस पॉइंट पे फाइंड करना है, दैट इज 2 pi by 2 pi by 2. So this is nothing but your r, this is nothing but your theta and this is nothing but your phi. तो r की वैल्यू पुट करना है, थीटा की वैल्यू pi by 2 और फाई की वैल्यू पाई बाय 2, तो इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इसको रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर d एट द गिवन पॉइंट विल बी 1 अपॉन आर स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस साइन पाई बाय 2, क्योंकि साइन ऑफ थीटा था तो थीटा इज पाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन आर इज 2 साइन थीटा, तो साइन पाई बाय 2 इनटू कॉस ऑफ 2 थीटा, तो 2 इंटू पाई बाय 2, तो दिस विल गिव यू कॉस ऑफ पाई इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आर है तो ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यू विल फाइंड दैट द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर d विल कम आउट टू बी 0.0767 कूलम्स पर मीटर क्यूब, राइट। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द डाइवर्जेंस एट एनी पॉइंट। In some other numerical you will be asked only to calculate the divergence. In some numerical you may be asked to calculate the value of divergence at a certain point. ठीक है, तो अगर सिर्फ डाइवर्जेंस निकालने के लिए बोलते हैं तो सिंपली अप्लाई द फॉर्मूले, अप्लाई द प्रॉपर डिफरेंशिएशन फॉर्मूले एंड गेट द एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस। और किसी पॉइंट पे अगर निकालने के लिए बोलते हैं तो उस पॉइंट का वैल्यू उस डाइवर्जेंस के एक्सप्रेशन में आपको पुट कर देना है एंड इन दैट केस यू विल गेट द वैल्यू।
राइट। तो होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच।